Hello everyone, I am Jasina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 11th November 2024 and we're going to be seeing important articles from the Hindu, Indian Express. So let's begin. But before we move to understanding the topics, let's understand आज का जो दिन है 11th November, what is it celebrated as? It is celebrated as National Education Day and इस दिन में किसको ऑनर किया जाता है, किसका बर्थ एनिवर्सरी है, वो इज आवर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, दैट इज मौलाना अबुल कलाम आजाद. तो मौलाना अबुल कलाम आजाद has been a pioneer with regard to education. बहुत सारी institutions उन्होंने start किए हैं. So let us have a quick view about his achievements, his contributions. Okay. So as I said, was the first education minister of independent India. यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद. Okay. Now he also started some educational bodies जैसे कि the All Indian Council for Technical Education AICTE as well as the University Grants Commission. Right. अपार्ट फ्रॉम दैट जो IITs स्टार्ट हुए थे 1951 में पहला IIT स्टार्ट हुआ था which is IIT खड़गपुर and then we see 54 से 64 1954 to 1964 we have the other IITs also came in. लेकिन पहला जो IIT है it is खड़गपुर. He also was awarded the Bharat Ratna मरने के बाद posthumously, that is in 1992. So this is with regard to the achievements, the contributions of Maulana Abul Kalam Azad, जिसके दिन पे birth anniversary के दिन पे हम celebrate करते हैं National Education Day. Let us now also see आज का दिन इसीलिए important है because we are going to be starting with the COP29. UNFCCC, that is United Nations Framework Convention on Climate Change, right? इसका जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, मीटिंग होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. इट्स कॉल्ड एज कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. तो अभी 29th कॉप चल रहा है. इनफैक्ट स्टार्ट हुआ है आज ही के दिन विच इज 11th November and this will go up to the 22nd November 2024. तो ये कहाँ पे हो रहा है? This is happening at Baku, Azerbaijan. Okay, so we are going to be seeing in the coming times कि इस मीटिंग में क्या important discussions होते हैं, कौन से important target set किया जाएगा. All of this we're going to see in the coming times, but remember today it has begun this particular important summit, climate change से related. So let us now proceed to the first article of the day then. The first article is with regard to wind energy. कई बार हमने renewable energy के बारे में समझा है, but we never touch more about wind. We rather focus more on solar, right? लेकिन आज का article we're going to be focusing on wind energy. We're going to be seeing India का rank क्या है. We're going to be seeing India का target क्या है with regard to wind energy and so on, right? So let's understand this whole article. Let's see what we have to understand. तो पहले अगर आप देखोगे wind energy, okay, it is one part of renewable energy, right? Renewable energy जहाँ पे आप non fossil fuel based करते हो, where you talk about जो energy environment के लिए काफी अच्छा है. So that is where we talk about wind energy, which is a component of renewable energy. तो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट तो हम सबको पता है 500 गीगावाट बाय 2030. ना इसमें से विंड एनर्जी कितना है अगर टारगेट पूछते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दैट 140 गीगावाट ओके बाय 2030 शुड बी कमिंग फ्रॉम विंड, शुड बी कमिंग फ्रॉम विंड. ओके, अगर सोलर एनर्जी होता व्हाट वुड बी आंसर? The answer is 280. So 280 gigawatt सोलर के लिए है and अगर विंड पूछा है it is 140. Alright.
इवन देयर 30 गीगावाट, इसमें से 30 गीगावाट जो है विंड पावर में से 30 गीगावाट ये ऑफशोर में आएगा. व्हाट डू यू मीन बाय ऑफशोर विंड? ऑफशोर विंड इज द विंड एट सी, राइट. तो सी सर्फेस, सी लेवल, सी लैंड के जहां पे आप विंड टर्बाइन जो प्लांट्स एस्टैब्लिश करते हो उसमें से 30 गीगावाट जनरेट करेंगे. दैट इज अगेन अ टारगेट. तो ऑफशोर स्पेसिफिकली पूछा, आपको 30 गीगावाट याद रखना है. बट अगर टोटल विंड एनर्जी पूछा, यू हैव टू रिमेंबर इट्स 140 गीगावाट. व्हाट इज इंडियाज रैंक विद रिगार्ड टू विंड इंस्टॉलेशन कैपेसिटी? तो हमारा रैंक है 4th. सो इंडिया रैंक्स 4th विद रिगार्ड टू विंड इंस्टॉलेशन कैपेसिटी. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर पूछते हैं कि कौन से स्टेट्स आर you can say leading with regard to wind production, wind installation, that is Gujarat. Okay, now Gujarat, as with regard to the recent data as of 2024, Gujarat is not only a leading producer of wind energy but also capacity में अगर हम देखें, potential भी देखें, Gujarat is leading in this. Okay, and second in line is Tamil Nadu. Second कौन है? Tamil Nadu. तो आज का जो आर्टिकल है, so I hope you've understood the important targets, important one-liners आपके एग्जाम के लिए. Now we're going to be seeing with regard to Tamil Nadu. Okay, तो आज का आर्टिकल तमिलनाडु से रिलेटेड है, which is the second most leading state for wind energy capacity. Okay, after Gujarat. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक विंड पॉलिसी एस्टैब्लिश किया था. ओके, इनकी जो गवर्नमेंट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट brought about a wind policy. Now this wind policy that came across in August, जो wind generating companies है, wind generators हैं, they were not happy with it. ये खुश नहीं थे इस wind policy. Why so? It is because they said कि ये incentivize नहीं करता wind generation के लिए, और अगर incentivize नहीं करता तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, राइट. सो इन्वेस्टमेंट के लिए they will not find a sector, this sector will not be very beneficial for the investments, therefore they are not happy with the wind policy. इसीलिए इन्होंने इस पॉलिसी को अपोज किया. ये जो कंपनीज हैं, विंड कंपनीज, इन्होंने अपोज किया. और फिर मैटर गया किसके पास? मैटर गया हाई कोर्ट के पास. कौन सा हाई कोर्ट? मद्रास हाई कोर्ट. सो मद्रास हाई कोर्ट ने अभी इस पॉलिसी पे स्टे लगाया है. So of course now there's nothing much to discuss. We're going to see what will happen. ये news भी August का policy है. So now we're going to see what will happen with regard to the policy. But before that, let's also understand the capacity. और तो हमने समझ लिया है, rank भी समझ लिया है. Maintenance की बात करें, how do we maintain these wind turbines? Maintenance की बात करें, we understand that ये जो टर्बाइन्स हैं, ओल्ड टर्बाइन्स, ठीक है, जो पुराने टर्बाइन्स. ना हाउ डू वी कंसिडर और क्लासिफाई एन ओल्ड टर्बाइन? जो 15 साल से पुराना है. इट्स ग्रेटर देन 15 years एंड लेस देन 2 megawatts. सो 15 years एंड 2 megawatts से कम, ठीक है. सो दैट इज कंसिडर्ड एज एन ओल्ड टर्बाइन. सो ओल्ड टर्बाइन्स को क्या किया जाता है? ईदर आप इसको रिप्लेस करो या आप इसको अपग्रेड करो. टर्बाइन्स को क्या किया जाएगा? अगर इसको इधर रिप्लेस करो या अपग्रेड करो. रिप्लेस का दूसरा नाम है रीपावर एंड अपग्रेड का दूसरा नाम है रिफर्बिश. ओके, सो यहाँ पे जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, तमिलनाडु जो है, ये रीपावरिंग पे फोकस करना चाहता है. दैट मीन्स रिप्लेसिंग द ओल्ड टर्बाइन्स. नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस हियर दैट दे हैव विद रिगार्ड टू द रिप्लेसिंग ऑफ द ओल्ड टर्बाइन्स? फर्स्टली, आपको टॉल टर्बाइन्स की आवश्यकता है. यू रिक्वायर दीज टर्बाइन्स टू बी ट्रांसफॉर्म्ड और रिप्लेस्ड विद टॉलर टर्बाइन्स. और टॉलर टर्बाइन्स विल ऑफ कोर्स require more area, will require more land. तो यहाँ पे क्या important factor है? आपका land.
फर्दर इसके कारण आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा, इसके कारण आपका ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको चाहिए होगा. So these are all the challenges at hand for Tamil Nadu when they are looking at repowering of the older turbines. Okay, and हम देखते हैं because the state is second in line with regard to the wind power generation capacity, it has the potential. और अगर हमको ये meet करना है 140 gigawatts, we need to bring in certain changes. So let's see in the coming times क्या ये government करती है, क्या ये policy place में आती है. We're going to see this in the coming times. Now let's proceed to the next article. अगला article है with regard to France. और फ्रांस अभी क्या कर रहा है? It is evaluating इंडिया का पिनाक रॉकेट सिस्टम. So Pinnack rocket system is India's multi-barrel rocket launcher. It's called as multi-barrel rocket launcher, MBRL. तो ये जो पिनाक है, किसने इसको डिजाइन किया है? It is designed indigenously by India का DRDO, which is the Defense Research and Development Organization. तो DRDO जो है, इसने पिनाक सिस्टम, पिनाक comes after the name of शिवा का जो बो है, इसको हम पिनाक बोलते हैं, राइट? सो पिनाक इसमें ये नाम है. एंड विद रिगार्ड टू दिस, ये जो रॉकेट्स लॉन्च कर सकता है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, यानी कि इट कैन रिलीज अप टू 12 रॉकेट्स within 44 to 48 seconds, right? एंड फ्रांस पहला कंट्री नहीं है जो ये चेक कर रहा है कि क्या हम पिनाक सिस्टम को बाय कर सकते हैं. बिफोर दिस वी हैव द फर्स्ट कंट्री टू गेट द एक्सपोर्ट ऑफ पिनाक, जिसको हमने ये एक्सपोर्ट किया है, दैट इज अर्मेनिया. तो ये एक फैक्ट याद रख लेना, दैट इज व्हिच इज द स्टेट, व्हिच इज द कंट्री दैट हैज टेकन द पिनाक सिस्टम, बिकॉज we all remember कि ब्रह्मोस मिसाइल हमने फिलीपींस को दिया है. So this is another example for you to remember. Apart from that, अगर हम देखें, पिनाक सिस्टम का रेंज जो है about 65 to 90 किलोमीटर तक जाता है, उसका रेंज जो रॉकेट वो लॉन्च करता है. So it's a very important kind of इंस्ट्रूमेंट फॉर अस, डिफेंस इक्विपमेंट फॉर अस. एंड हमने ये पहली बार कब यूज किया था, क्वेश्चन आएगा तो याद रख लेना, 1999 में. 1999 में क्या हुआ था? इट वाज द कारगिल वॉर. ओके, ड्यूरिंग द कारगिल वॉर वी हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर पिनाक सिस्टम. नाउ इंडिया और फ्रांस की बात करें, देन वी सी दैट वी रिसेंटली कंक्लूडेड एन एक्सरसाइज. एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज शक्ति. एक्सरसाइज शक्ति कहां पे हुआ था? ये एक्सरसाइज शक्ति हैपेंड इन मेघालय. इट इज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, एक बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है. सो वी हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद रिगार्ड टू दिस. जो भी अभी अगर आप देखोगे, इंडिया जो है सबसे बड़ा इंपोर्टर है, जिसका मतलब ये नहीं कि हम एक्सपोर्ट नहीं करते. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. इंडिया इज द लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्टर, right? And this information we know through the help of a report called as SIPRI. SIPRI का फुल फॉर्म क्या है? Stockholm International Peace Research Institute. तो इंपोर्टर जरूर है हम. एंड कौन से कंट्री से हम सबसे ज्यादा लेते हैं? इट इज रशिया. ऑलराइट. एंड अगर क्वेश्चन आता है विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर की बात करें, इट इज यूएसए. ओके, यूएसए. So if you after USA exporter जो एक्सपोर्ट करता है डिफेंस इक्विपमेंट्स, इट इज फ्रांस फॉलोड बाय रशिया. और इंडिया की बात करें, हम सबसे ज्यादा रशिया से लेते हैं, फिर फ्रांस, एंड देन वी टेक फ्रॉम यूएसए. सो दिस इज द रैंकिंग. इफ दे हैव आस्क्ड यू, यू शुड नो कि इंडिया सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है, यूएसए सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, और इंडिया जो है अपने इक्विपमेंट्स रशिया से सबसे ज्यादा लेता है. So these are some facts for you with regard to this article. Let's move to the next article then. अगला आर्टिकल स्टेट न्यूज से है. सो यहाँ पे जो आसाम है, आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज गोलपारा डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? टू एंड चाइल्ड लेबर, टू एंड चाइल्ड मैरिजेस, राइट? दे हैव अ वेरी इनोवेटिव मेथड. ये इनोवेटिव मेथड क्या है?
This is comic commandos. तो comic commandos यानी कि by the use of comic books, by the use of artwork, ये यहाँ पे जैसे सोशल इविल्स हैं, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, इसको खत्म करना चाहते हैं. So a very interesting way, interesting campaign to avoid these social evils in Assam. तो अगर question कैसे आएगा? Question ऐसा आता है कि which is the country or which is the state in India that recently introduced comic commandos to end the social evils like child labor, child marriage, etc. Your answer here would be Assam. So it's a one-liner for you and an innovative method started by the Assam. Now let's understand the next article. Next article is with regard to हमारे new Chief Justice of India. So recently हमने ये देखा था कि Chief Justice of India का farewell हुआ 2 दिन पहले. कल उनका last working day था and आज will be the new CJI will step into the office. And who is that? That is Sanjeev Khanna. Justice Sanjeev Khanna. He will be the 51st CJI जो oath लेंगे as the next CJI. कौन appoint करता है the CJI? It is the president. So remember this, the president is the one who's going to appoint. President ही oath लेंगे of the CJI. So important fact for you. CJI का हमने पहले भी डिस्कस किया था with regard to it. However, here we will just understand that आज उनका oath ceremony होगा. आज उनका oath ceremony होगा. Let's see the next article then. The next article is with regard to an Indian Express का article है pandemic fund से related. Pandemic fund. Let us understand what exactly this is all about. तो एक pandemic fund करके आया है. ये कब रिलीज हुआ था, किसका इनिशिएटिव है? इट इज अबाउट द G20 इनिशिएटिव. ये स्टार्ट हुआ था इंडोनेशिया में जब प्रेसिडेंसी था. दैट इज इन विच ईयर? 2022. सो इंडोनेशिया में जब G20 समिट हुआ था, दैट वाज द 17th समिट, राइट? इस टाइम पे ये फंड रिलीज हुआ. इंडिया में कब ये G20 समिट था? इट वाज इन 18th समिट. 2023 में ये हम समिट इंडिया में हुआ था. दिस समिट हैपेंड इन इंडिया इन 2023. इट वाज द 18th समिट. अभी जो समिट, इनफैक्ट दिस मंथ वी आर गोइंग टू हैव दिस G20 समिट व्हिच विल बी द 19th समिट, राइट? 2024 में 19th समिट कहां पे हो रहा है? दिस इज हैपनिंग इन ब्राजील, रियो द जेनेरियो. ओके, एंड इफ you are going to give the exam next year, you should know that 20th summit जो है, the next president of the G20, it is South Africa. Okay, so that is in 2025. तो ये आपको याद रख लेना है. और अगर आप फिर भी क्यूरियस हो कि 2026 में कौन होगा, then it is USA. So 21st G20 summit will be president will be USA. Okay, and that is going to be in 2026. तो ये हमने G20 के बारे में थोड़ा एक बेसिक समझा कि कौन प्रेसिडेंट था इन समिट्स में. G20 जो है आया था 1999 में, राइट? जहां पे डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज का ये ग्रुपिंग है. ऑफ कोर्स अफ्रीकन यूनियन इज द लेटेस्ट मेंबर. इसके बाद ये G21 बना है, बट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी ऑलवेज यूज द टर्म, न्यूज़पेपर में भी G20 का ही जिक्र होता है. नाउ ये जो पैंडेमिक फंड है ये क्या है समझते हैं. सो दे हैव earmarked about 2 billion funds. इतना उन्होंने रेस किया है, 2 billion funds, okay, $2 billion. एंड ये जो फंड है इट इज मैनेज्ड बाय 3 groupings. Which are the 3 groupings? That is the Asian Development Bank, the World Bank and the FAO, which is the Food and Agricultural Organization. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इट वाज इन 1966 दैट इट केम इनटू प्लेस. ओके, एंड मनीला फिलीपींस में इनका हेडक्वार्टर्स है. यहाँ पे हम देखते हैं जापान सबसे ज्यादा इसको कंट्रीब्यूट करता है. इंडिया 4th रैंकिंग पे है विद रिगार्ड टू गिविंग द फंड्स. सो दिस इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. वर्ल्ड बैंक कब आया था? 1944 में आया था एंड इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में.
and we understand that it came through Bretton Woods Conference, World Bank और एक organization आया था which is the IMF. ये देता है loans with regard to developing countries, even least developing countries. इनके अलग अलग groupings है, जैसे कि multilateral investment guarantee to ensure कि जो आप investment दूसरे countries में देते हैं वो secured है, या settlements settle करना, dispute settle करना. So इसका एक group है ICSID. तो ऐसे 5 groups है World Bank के अंदर जो हमने institutions में किया है. But I'm just touching upon them so you remember कि pandemic fund जो है 3 groupings का implementation agency होता है. And finally FAO which came across in 16th October 1945. इनका headquarters है रोम इटली में, and of course ये बहुत सारे reports लेता है to increase productivity, to increase the health and with regard to food productivity of the world. ये जो pandemic fund है, this is going to be concluding mostly in 2026. Okay, so that is what data that we have. अभी हम समझते हैं आज के आर्टिकल को. आज के आर्टिकल में बताया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने एक लॉन्च किया है फंड which is एक प्रोजेक्ट which is called as Animal Health Security Strengthening in India for Pandemic Preparedness and Response. तो ये पूरा बड़ा सा एक नेम है. इस प्रोजेक्ट पैंडेमिक फंड के अंदर इन्होंने लॉन्च किया है. इसमें इंडिया को $25 मिलियन मिल रहा है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए. ये पैंडेमिक फंड के अंदर ही इट इज implementing this. Now what is the aim of this particular project? ये प्रोजेक्ट चेक कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड कर रहा है with regard to animal threats, animal health threats, और उनके रिलेटेड पैंडेमिक रिस्क से बचने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. तो आपको पता ही है जैसे कि जूनोटिक डिजीजेस, ओके, 2/3 ऑफ आर पैंडेमिक्स और हेल्थ इन्फेक्शंस, ह्यूमंस को जो इन्फेक्शंस होते हैं ये 2/3 जूनोटिक डिजीजेस है, यानी कि एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर होने वाले डिजीज, दैट्स कॉल्ड एज जूनोटिक डिजीज. सो इनसे बचने के लिए ना वेरी फेमस एग्जांपल इज कोविड-19, दैट इज अ जूनोटिक डिजीज. सो ऐसे बहुत सारे जूनोटिक, नीपा वायरस सुना होगा आपने, ओके, बहुत सारे फ्लाइज एंड मस्कीटोज, इससे जो डिजीजेस आते हैं, राइट, वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ मेजर कॉज ऑफ हेल्थ कंसर्न फॉर द वर्ल्ड. तो इससे बचने के लिए वी हैव ब्रॉट दिस फंड एंड मोर सो फॉर इंडिया. इंडिया हैज सबसे ज्यादा लार्जेस्ट लाइवस्टॉक प्रोडक्शन. लाइवस्टॉक का मतलब क्या है? जो एनिमल्स यूज किया जाता है, लाइक कैटल, लाइक पिग्स एंड हॉर्सेस एंड शीप, इसको हम कहते हैं लाइवस्टॉक. और इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइवस्टॉक प्रोड्यूसर, राइट. सो इसके लिए वी नीड टू एंश्योर द हेल्थ ऑफ द लाइवस्टॉक, बिकॉज यही लाइवस्टॉक आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर पर से, है ना. हमारा जो एग्रेरियन इकोनॉमी है इस पे निर्भर है. So therefore, to ensure that we are well prepared with regard to this, हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया इस फंड के थ्रू. तो इसमें हमको $25 मिलियन मिला है. So इससे क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट करेगी इंक्रीज अर्ली वार्निंग सर्वेलियंस, ओके, इट्स गोइंग टू इंक्रीज रिसर्च, लेबोरेटरी टेस्टिंग, वैक्सीन्स अवेलेबिलिटी, ये सब करेगी इस प्रोजेक्ट के अंदर. सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन अंडर द प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द फार्मिंग एंड द फिशरीज इंडस्ट्री. Let's understand the next article. The next article is with regard to the Bandhavgarh Tiger Reserve. So very sad news. Okay, यहाँ पे 10 wild elephants की मृत्यु हुई है. 10 wild elephants have died in the Bandhavgarh Forest, Tiger Reserve. Okay, so we will understand what are the important facts we have to understand. और ये death कैसे हुआ है समझते हैं. तो ये जो death हुआ है, it is because of consuming large quantities of something known as a कोडो मिलेट. कोडो मिलेट जो है, ये जो मिलेट में एक टॉक्सिन पाया गया था, एक फंगल टॉक्सिन. ओके, इस कोडो मिलेट में एक फंगल टॉक्सिन था
उस फंगल टॉक्सिन का नाम क्या है? साइक्लोपियाजोनिक एसिड। साइक्लोपियाजोनिक एसिड। तो जो फंगस ने क्या प्रोड्यूस किया? एक एसिड प्रोड्यूस किया, साइक्लोपियाजोनिक एसिड, और ये मिलेट ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से ये एलिफेंट्स have died. These elephants have died. Okay, so it's a very sad, tragic news. So we'll see that what exactly we can be expected to know from this particular article. Firstly, ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश. Okay, this is in Madhya Pradesh. If they ask you where do you find the most number of elephant concentration, then that is Karnataka. तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन पाया जाता है, right? So these are some facts that we have to understand. Apart from that, they have just given you with regard to a study कि ये जो कोडो मिलेट खा के इसको क्या हुआ है, ये एक रिसर्च आया है, how does it affect? So those you can just have a look. But we have covered the important points what you have to study, and here the report that we got, we just have to remember ये ICAR ने लेके आया है. ICAR which is the Indian Council of Agricultural Research. तो Indian Council of Agricultural Research ये कब आया था? It came in 1929. इसका हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में, और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? It works under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. तो यहाँ पे ये रिपोर्ट के थ्रू ये भी कह रहा है कि फार्मर्स शुड बी वेल अवेयर, दे शुड टेक गुड प्रिकॉशंस टू इंश्योर कि जो मिलेट्स वो जो ग्रो करते हैं, ओके, दे शुड नॉट हैव एनी फंगस. ये जो कोडो मिलेट्स है, दे आर आल्सो वेरी प्रोन टू लाइक पेस्ट लाइक अर्गॉट. ओके, तो ये जो रिपोर्ट कहता है, इट्स गिविंग यू बेसिकली अ स्टडी व्हाट द फार्मर्स शुड डू, शुड नॉट डू टू इंश्योर कि ये जो मिलेट्स हैं दे डोंट गेट एनी फंगल इन्फेक्शंस, ताकि जो कंज्यूम करते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमंस, दे मे बी अवे फ्रॉम दीज हेल्थ रिस्क्स. Let's understand the next article of the day and the last article, of course. So this is with regard to the LignoSat. Okay, ये बहुत ही important है because ये world का सबसे पहला wooden satellite है. It's the world's first wooden satellite that is launched. Question आ सकता है कि किसने लॉन्च किया है? तो एक जापान से लॉन्च किया गया है. It's a Japanese satellite, but it is not done by JAXA. ये जापानीज स्पेस एजेंसी ने नहीं बनाया है. किसने बनाया है? It is by Kyoto University and Sumitomo Forestry. Okay, I hope I'm pronouncing it correct. Kyoto University and Sumitomo Forestry. तो इन्होंने ये लॉन्च किया है, रिसेंटली लॉन्च किया था, November 5th में ये लॉन्च हुआ था. LignoSat है नाम. So world's first wooden satellite, and what is the major aim of this? इसका aim है to test the durability of wood. जो extreme temperatures से वो it faces, right, जब वो space में होता है, so how does it act, as well as हम reduce करना चाहते हैं the use of metal, the use of aluminium in spacecraft, जिसके कारण space debris होता है, and of course it can create to a number of other problems. तो ये पहला एक ऐसा initiative है which is called as a LignoSat. यहाँ पे आप इसको फोटो भी देख सकते हैं. So that is all with today's articles. बहुत सारे interesting articles हमने पढ़े हैं, and I will see you in the next video where I am going to be discussing 20 CLAT questions from today's articles. Thank you.